The topic is elements of the environment. The natural environment of any part of the earth's surface can be classified into following 14 elements. Abstract elements consists of areal space or size, form of the region, geographic location, situation, geometric position. These are the abstract elements. In the last lecture, I have already explained the elements of the natural environment and cultural environment. In this lecture, also, I am explaining the elements of the natural environment and cultural environment very systematically and point wise. So, the first elements were abstract elements, the second is physical elements of the natural environment. Those are landforms, climate, rocks and minerals, soil, water bodies, underground water, ocean and its coast. And the C part is biotic elements, that is vegetation and animals. Cultural environment, different groups of people occupy different parts of the world in different environment to gain control over it according to their experience. It is also the direct indicator or index of how effectively the area is being used by man. There are several elements in cultural environment. First is physiological needs, A part, that is man's food, clothing, shelter. These are the basic needs, these are the physiological needs or the basic needs of the human being. B part is economic pattern, primary occupation, food gathering, hunting, fishing. These are the primary occupation. Extractive industries are pastoralism, lumbering, mining, agriculture, and the manufacturing industries are industrial development, commerce and trade, means of mobility. And the pattern of social control, C part is pattern of social control. It includes marriage, family and kinship, land system, division of labor, customs, social status and religion. And the D part is political organization, which includes boundaries and extension, use of resources, how to use the resources, health, recreation and public opinion, arts and science, etc., and global relationship. एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट को अगर हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें, मानव भूगोल में भौतिक तथा जैविक दोनों प्रकार के तत्वों को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है. इस स्पेस रिलेशनशिप बा मनुष्य की गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. स्थानिक संबंध व स्पेस रिलेशनशिप की व जियोमेट्रिकल लोकेशन की प्राकृतिक स्थिति व नेचुरल सिचुएशन किसी महाद्वीप, महासागर, नदी, पर्वत आदि के संदर्भ में किसी स्थान अथवा प्रदेश की स्थिति को भी प्रदर्शित करते हैं. भूतल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें भू आकृतियाँ अथवा स्थलाकृतियाँ कहते हैं. महाद्वीप एवं महासागर पर बड़े बड़े पर्वत, पठार तथा मैदान जैसे भू आकृतियाँ, घाटी, गर्ज, कैनियन, डेल्टा आदि स्थलाकृतियाँ हैं. क्लाइमेट मनुष्यों को प्रभावित करने वाली सभी भौगोलिक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली तत्व हैं. ये मनुष्यों के क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दो रूपों में ही प्रभावित करती है. हंटिंगटन ने कहा है, क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. मानव के स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, मकान, जीविकोपार्जन, परिवहन, सामाजिक एवं संस्कृति पर भी जलवायु का नियंत्रण रहता है. मानव सभ्यता के विकास में रॉक्स एंड मिनरल्स का भी व चट्टानें, खनिजों, इसका भी बड़ा योगदान है. सॉइल पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार व मिट्टी मूल आधार है. कृषि एवं वनस्पति मृदा पर ही आधारित है. वाटर बॉडीज व जलाशय भी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है. महासागरीय जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, स्थलीय जल संसाधन व सरफेस वाटर रिसोर्सेज व भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का भी भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है. इस जल को कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई के माध्यम से प्रचलित किया
प्रचलित है माध्यम से प्राकृतिक वनस्पति वनों, घास के मैदानी एवं झाड़ियों के रूप में भी मिलते हैं, जिसका मानव के लिए विशेष महत्व है। ये किसी प्रदेश को की आर्थिक विकास, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। पशु जीवन का भी महत्व है। पशुओं दूध, मांस, ऊन आदि प्राप्त होते हैं पशुओं से। मनुष्यों की प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण जो कल्चरल लैंडस्केप है व कल्चरल एनवायरनमेंट है, उसका भी महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक वातावरण। मानव की आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्रों एवं निवास रहने के लिए घर की ज़रूरत है। जैसे ये बेसिक नीड्स है, भोजन है, वस्त्र हैं, उसकी निवास, फूड, शेल्टर, क्लोथ, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो मानव का कोई ना कोई आर्थिक क्रियाएं भी करना होता है। वनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करना, आखेट करना, हंटिंग करना, लंबरिंग व लकड़ी काटना, पशुचारण एवं पशुपालन करना, फिशिंग करना, मत्स्य पालन करना आदि व्यवसाय एवं कृषि, एग्रीकल्चर, खनन व्यवसाय व माइनिंग एक्टिविटी करना, जैसे इन सारे एक्टिविटीज़ मानव करते हैं। किसी को हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहते हैं, तो कोई ऑक्यूपेशन को हम सेकेंडरी, किसी को हम टर्शियरी ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। तो ये सारे काम मनुष्य करते हैं, इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा व मकान के पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार कार्य करता रहता है।